Hello children, welcome to digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara. I am Amit Toshniwal, your economics teacher. This video is for class 11th. Subject is economics. Chapter number 5, Measures of Central Tendency, Part 3. Today you shall learn calculation of simple arithmetic mean in discrete series. So discrete series means where the variables differ from each other by definite amounts. It means they have got frequency but they do not have class intervals. So for this also you will have two methods, direct method and shortcut methods. So let us understand direct method first. So what is the procedure? First step is to multiply the variable by the frequency, yani f multiply x. Then you have to add up all fx, then you will get sigma fx in a sum of products. Then third step is add up all f, you will get sigma f in a total frequency. Then you will have to apply a formula and you will divide sigma fx by n. N means number of frequency यानी कि sigma f. तो फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारे पास? बार x is equal to sigma fx upon n, where bar x it means actual arithmetic mean, f stands for frequency, x is the size of item or you can say variable, that is sigma sign, it's a Greek letter actually, it's mean total, n means number of items or sigma f, and fx refers to x multiplied by frequency. बुक में गलत लिखा हुआ है, बार x लिखा है, वहाँ से बार अलग कर लेना, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर. तो ये बार x नहीं, केवल x है. x is multiplied by frequency. Now have a look. For example number 3, you are given some sizes along with their frequencies. Sizes are 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And frequencies are 5, 8, 9, 12, 6, 6, 4. So in first two columns, now see the solution. In first two columns, you have to write the two columns given above in question, size and frequency. Okay? So what is the first step? You have to multiply f and x. So 5 6 are 30, f is 5, size is 6, 5 6 are 30, 8 7 are 56. थर्ड कॉलम आपको fx मिलता जा रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप. 9 8 are 72, 12 9 are 108, 6 10 are 60, 6 11 are 66, and 4 12 are 48. थर्ड इज एड अप ऑल fx. तो टोटल करने से 30, 56, 72, 108, 60, 66 एंड 48, इनको सम करने से आता है 440, दैट इज सिग्मा fx. नाउ फोर्थ स्टेप इज टू टोटल फ्रीक्वेंसी, एड अप फ्रीक्वेंसी. 5 plus 8 plus 9 plus 12 plus 6 plus 6 plus 4, you will get n, or you can say sigma fx, it is 50. Now it's time to apply formula. Bar x is equal to sigma fx upon n, and put up the value 440 upon 50, and after division you will get 8.8. That is your answer, that is arithmetic mean of the given data. Okay? Now we will come upon second method, shortcut method.
तो रिमेंबर इन शॉर्टकट मेथड you have to assume any of the middle number as arithmetic mean, which is called assumed mean. Okay, but remember this again, I am repeating, first and last observation cannot be considered as arithmetic mean, as mean means middle number, somewhere in the middle. That's why avoid taking first and last observation, or else you can take any other observation from the given data. Second, you need to find deviation. For this, from each variable you subtract assumed mean to find out deviation. It means how far the variable stands from assumed mean. So that is called deviation. वो उससे कितनी दूरी पर है. तो कभी वो आपको प्लस में मिलेंगे, कभी माइनस में मिलेंगे, तो डजेंट मैटर, हम बाद में उनको फिर सबकी तबीयत ठीक कर देंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, है ना, उससे डरना नहीं. तो उसे तुम डिनोट करोगे डी एक्स से. डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन, एक्स डेविएशन ऑफ एक्स. देन थर्ड इज मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी विथ डी एक्स. जो तुमने x माइनस ए से जो आंसर तुम्हारे आए हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे फ्रिक्वेंसी से. यहाँ ध्यान रखो, तुम वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करते, उनके डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हो शॉर्टकट मेथड में. ठीक है. देन एड अप ऑल एफ डी एक्स. मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर लो और फ्रिक्वेंसी का टोटल कर लो. फिर फॉर्मूला होगा तुम्हारे पास बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन. अब एन की प्लेस पर तुम सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे एन का हो चाहे सिग्मा एफ, चाहे राम का हो चाहे श्याम, एक ही बात है. एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ. ठीक है. अब एग्जाम्पल 4, यू आर गिवन हाइट्स 64, 65, 66, 67 अप टू 73. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं तुमको 4, 6, 10, 22, 21, 17, 10, 5, 3, 2. तो सबसे पहले तो इन दोनों को एज इट इज़ लिख लो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में नीचे सॉल्यूशन बनाते समय. अब 64 से 73 इनके बीच में 64 को छोड़ देना और 73 को छोड़ देना. एक्स वाला कॉलम देखना, एक्स है ना वेरिएबल वाला. कौन कौन से छोड़ दोगे? ऊपर वाला नहीं लेना, यानी पहला और लास्ट, इन दो को छोड़ के किसी को भी तुम एज्यूम्ड मीन मान सकते हो. यहाँ पर क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन उन्होंने 68 लिया है. तो अब आ जाओ तुम थर्ड नंबर के कॉलम पे, यानी कि डी एक्स तुम्हें निकालना है ना, डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन. क्या करते हो? जो तुम्हारा वेरिएबल है उसमें से तुम एज्यूम्ड मीन माइनस करोगे. तुम्हारा पहला वेरिएबल है यानी x तुम्हारा पहला है 64, उसमें से तुम एज्यूम्ड मीन माइनस करोगे यानी कि 68, इट कम्स टू -4. फिर सेकंड वाले में 65 है, 65 में से तुम 68 माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? -3 एंड सो ऑन. तो तुम्हारे पास डेविएशंस कैसे आ गए हैं? -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5. ठीक है. अब यहाँ ध्यान रखना, डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रिक्वेंसी से. तो तुम्हारी पहली फ्रिक्वेंसी है 4, डेविएशन है -4. 4 मल्टीप्लाई -4, इट कम्स टू -16. देन सेकेंड फ्रिक्वेंसी 6, सेकेंड डेविएशन -3. 6 इंटू -3, इट कम्स टू -18. देन 10 इंटू -2, -20. 22 -1 का मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया -22. 21 0 ज़ा 0, है ना. देन सो ऑन. नाउ व्हाट टू डू? एड अप ऑल नेगेटिव नंबर्स फर्स्ट and then add up all the positive numbers. From the positive you subtract all the negative, then the answer is -2. तो you will get sigma f dx. इंटीजर्स पढ़े हैं ना छठवीं क्लास से, सारे प्लस वालों को पहले प्लस कर लो, फिर सारे माइनस वालों को प्लस कर लो और दोनों को फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर दो. तो कितना आ जाएगा? -2. फ्रिक्वेंसी का टोटल किया तुमने सेकेंड वाले कॉलम में 4, 6, 10, 22 वगैरह का,
तो ये आ गया तुम्हारे पास 100। ठीक है, अब बारी आती है फॉर्मूला अप्लाई करने की। क्या है फॉर्मूला? बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए यानी एज्यूम्ड मीन 68 वैल्यू पुट करो। सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया? -2 वो लिखो। एन कितना था? 100 वो लिखो। 68 लिखा रहेगा। -2 को तुम डिवाइड करोगे 100 से, यानी कि तुमने 2 को डिवाइड किया तो वो माइनस साइन तो बीच में रहेगा। 2 डिवाइडेड बाय 100 इट कम्स टू 0.02। नाउ इट्स टाइम फॉर सब्ट्रैक्शन। 68 में से 0.02 को माइनस करेंगे, कितना आया? 67.98। दैट इज़ योर आंसर। ओके, सो यू वर्क आउट सम मोर क्वेश्चंस based on direct and shortcut methods for discrete series, and will continue for continuous series in next video. Thank you.